Dear students, have a nice day. Today I have come with my new video of grammar. Guys, as you know, grammar starts with letters, words, sentences. First of all, I shall tell you about a word. What is a word? Students, you should know a word is a group of letters which has complete sense and meaning. As Ravi, this is a word, group of letters RAVI. Guys, if there is not complete sense, complete meaning, then that will not be a word. Right? A L L P L E. Now there is not any meaning of this word, so the group of letters cannot be called a word. And if the word has complete sense and meaning, then it will be a word. As A double P L E, a group of letters which has complete sense and meaning. Apple, apple means seed. So this is group of letters and it can be called a word. In the same way, now I shall start with a sentence. As a group of letters which has complete sense and meaning is called a word. In the same way, a group of words which has complete sense and meaning is called a sentence. So the definition of a sentence is a sentence is a group of words which has complete sense and meaning. Understand? Now I shall tell you the types of sentences. Dear guys, there are 5 types of sentences.
and they are assertive, interrogative, imperative, exclamatory and optative. Dear students, you should recognize these sentences. You should have identification of these sentences, and for this I have given you points of identification. How can you recognize the sentence? What type of sentence is? First, assertive. First assertive sentence. See in the chart, beginning of the sentence and end of the sentence. Dear guys, in assertive sentence, in the beginning of a sentence, there is a subject, and in the end, full stop. And in interrogative sentence, in the beginning of sentence, helping verb or question word. Means interrogative sentence starts with helping verb or question word, and in the end of the sentence there is a question mark. Guys, number third, imperative sentence. An imperative sentence starts with please, kindly, don't, let, or main verb. Main verb also. And in the end of the sentence there is full stop. In exclamatory sentence, we find in the beginning of the sentence alas, hooray, oh, ah, aha, and in the end of the sentence there is sign of exclamation. And number fifth, an optative sentence. Optative sentence starts with may, and in the end there is sign of interjection, exclamation. Now understand it in Hindi also. प्यारे बच्चों, तुमको पता है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं उसका एक भाव होता है, उसका एक अर्थ होता है। यदि चाहे वो शब्द हो, चाहे वो कोई वाक्य हो, अगर उसका कोई अपना अर्थ नहीं है, उसका कोई अपना भाव नहीं है, तो न उसे हम शब्द कह सकते हैं और न उसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। इसलिए शब्द और सेंटेंस की परिभाषा, शब्द और वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से होती है, अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है, शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जब तक अक्षरों का समूह जो शब्द है या शब्दों का समूह जो वाक्य है, इनका पूर्ण अर्थ
पूर्ण भाव नहीं निकलता तब तक न हम उसे शब्द कह सकते हैं और न उसे हम वाक्य कह सकते हैं। इस प्रकार से शब्द की डिफिनीशन हुई कि शब्द अक्षरों का वह समूह है जिसका अपना एक भाव होता है, पूर्ण अर्थ निकलता, पूर्ण भाव होता है। इसी प्रकार से वाक्य शब्दों का समूह होता है और जिसका अपना एक अर्थ होता है, वो भी कंप्लीट, पूर्ण अर्थ और पूर्ण भाव होता है। तो इस प्रकार से और सेंटेंस और वर्ड्स की परिभाषा हम समझ सकते हैं। और यदि इनका पूर्ण भाव नहीं है, पूर्ण अर्थ नहीं है, तो फिर इसे हम सेंटेंस या वर्ड, वाक्य या शब्द नहीं कह सकते। अब सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? वाक्य के प्रकार होते हैं 5, जिसमें पहला होता है असर्टिव। असर्टिव की पहचान, असर्टिव को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें इसकी पहचान है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, अंत में फुल स्टॉप होता है। प्यारे बच्चों, आपको ये भी समझना चाहिए कि असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। ये चीज और ध्यान देना, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव हो चाहे सेंटेंस निगेटिव हो, उन दोनों प्रकार के वाक्यों को हम असर्टिव कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट या कर्ता और अंत में फुल स्टॉप। दूसरा प्रकार है जो सेंटेंस का, वो है इंटेरोगेटिव, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। और इसकी पहचान है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया और क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द लगे होंगे और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। प्यारे बच्चों, उसके बाद में थर्ड सेंटेंस होता है इंपरेटिव, थर्ड प्रकार का। तीसरे प्रकार का इंपरेटिव, जिसका हिंदी अर्थ होता है आज्ञावाचक। और ये सेंटेंस, ये वाक्य शुरू होते हैं प्लीज, काइंडली, डोंट, लेट या मेन वर्ब से। सबसे पहले शुरुआत में इनके प्लीज, काइंडली, डोंट, लेट या मेन वर्ब लगा होगा और सबसे अंत में इसमें लगा होगा फुल स्टॉप। उसके बाद में नंबर चौथा प्रकार जो है वाक्य का, वो होता है एक्सक्लेमेटरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। इसकी पहचान है, इसमें सबसे शुरुआत में अलास, हुर्रे, ओ, आ, आहा आदि शब्द लगे होते हैं और इसमें विस्मय, आश्चर्य की बात की जाती है। और सबसे अंत में इसमें साइन ऑफ इंटरजेक्शन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। उसके बाद में नंबर जो लास्ट प्रकार है आपका, अंतिम प्रकार है, वो है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसकी पहचान है, इसमें सबसे पहले में लगा होता है और सबसे अंत में साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है।
अब प्यारे बच्चों, ये समझ में आना चाहिए, तुम्हें पहचान याद कर लेनी चाहिए ताकि वाक्य को पहचान सको कि वाक्य किस प्रकार का है। फिर से एक बार देखेंगे कि 5 प्रकार के वाक्यों में हम सबसे पहले अंत के चिन्ह देखेंगे कि अंत में चिन्ह कैसा लगा है। आप देखते हो इसमें फुल स्टॉप 2 में लगा है और साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी 2 में लगा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क 1 में लगा है। तो जिसमें 1 में ही क्वेश्चन मार्क लगा है उसके लिए हमें कोई समस्या नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, समझ जाएंगे वाक्य है इंटरोगेटिव, सीधी सीधी पहचान। अब जिनमें फुल स्टॉप लगा है 2 में, इसलिए हम इनके लिए थोड़ा सतर्क रहेंगे। वी शुड बी केयरफुल इन रिकॉग्नाइजिंग द सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप अंत में लगा है तो हम देखेंगे शुरुआत में क्या लगा। अगर शुरुआत में सब्जेक्ट लगा है तो समझ जाएंगे असर्टिव है। अगर शुरुआत में प्लीज, काइंडली, डोंट, लेट या मेन वर्ब लगी है तो समझ जाएंगे वाक्य इंपरेटिव है। उसके बाद में साइन ऑफ इंटरजेक्शन 2 में लगा है, इसमें भी हम देखेंगे अगर शुरुआत में लगा है तो समझ लेंगे ऑप्टेटिव है, इच्छा सूचक वाक्य। और अगर शुरुआत में अलास, बुर्रे, ओ, आहा लगा है तो समझ लेंगे हम ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी है। बच्चों, ये पहचान इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रामर की शुरुआत अब जब आप करेंगे तो हम इन वाक्यों की पहचान की आवश्यकता पड़ती रहेगी। और अगर इस प्रकार से हमें वाक्य की पहचान आती है तो हम नरेशन, वॉइस, ट्रांसलेशन, इस प्रकार से हम सभी प्रकार के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। बच्चों, अपनी फेयर कॉपी पर शुरुआत में ही ग्रामर की फेयर कॉपी पर इसे नोट कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। इससे अगला स्टेप जो है ग्रामर का, उसे आपको प्राप्त करने के लिए एक काम करना होगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बस सब्सक्राइब करो, उंगली लगाओ, नेक्स्ट वीडियो पाओ।